Good afternoon, everyone. Myself, Vipin Bhati, Assistant Professor, IMT College of Law, Greater Noida. So today we are here for discussing a very important topic, injunction. So in this lecture, in this session, we are going to discuss what is the definition of injunction and what are the types of injunctions and how they legally applicable. So before starting the session, I have already told you that the injunction is very uh, high topic in this time. So it is covered by various acts of the law which is enacted by our legislature, such as Specific Relief Act 1963, Civil Procedure Code 1908. So what is injunctions? So definition of injunctions is given in the Specific Relief Act and by the other various jurists. So definition of injunction is that it is an injunction, it is an order of a court. Injunction is an order of a court requiring a person to do or cease doing a specific action. So what does it say? It says the order of a court which gives command or order to a person to do or not to do any specific act. ठीक है, कोर्ट इसमें आदेश करता है जब किसी ने अप्लाई किया इंजंक्शंस के लिए तो किसी एक पर्सन को बोलेगा कि आपको ये एक्ट करना है और सेम टाइम पे दूसरे पर्सन को बोलेगा कि आपको ये एक्ट नहीं करना है। ठीक है, so there are so many jurists which defined the injunctions. So in this role, Lord Halsbury defined injunction in his word. Lord Halsbury says that an injunction is a judicial process. An injunction is a judicial process whereby a party in order to refrain from doing or to do a particular act or thing. So Lord Halsbury says that कि ये एक प्रोसेस है। इंजंक्शन क्या है? ये जुडिशियल प्रोसेस है। जुडिशियल प्रोसेस है मतलब कि ये किसी केस का हियरिंग हो रहा है किसी भी स्टेज पर, कोर्ट के द्वारा जो भी ऑब्जर्वेशन किया गया है, पार्टी ने कोर्ट को अप्रोच किया है, तो जुडिशियल प्रोसेस के तहत एक ऑर्डर पास होता है। ठीक है, वो ऑर्डर क्या होता है कि फ्रॉम रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग और टू डू ए पर्टिकुलर एक्ट और थिंग। किसी एक पर्टिकुलर एक्ट को वो करने से या करने के लिए कोर्ट क्या है, ऑर्डर देता है। ठीक है, तो लॉर्ड हेल्सबरी कहते हैं। नेक्स्ट है जॉयस। नेक्स्ट जो है जॉयस। जॉयस सेज दैट injunction is an order remedial, the general purpose of which is to restrain the commission of some wrongful act of the party informed। जिस पार्टी ने इन्फॉर्म किया है, ठीक है, किसी पार्टी के रॉन्गफुल एक्ट को इन्फॉर्म किया गया है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर जो इन्फॉर्म कर रहा है उसको जो रेमेडी के रूप में जो कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी पार्टी के साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ, उसने वो रॉन्गफुल एक्ट क्या है, चाहे वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स हो, ठीक है, और या फिर आउटसाइड द कोर्ट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द पेंडेंसी जो डिफेंडेंट प्रॉपर्टी बेचने लग जाता है या फिर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो उस केसेस में जा सकते हैं। तो कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है किसी एक पार्टी ने, तो जो दूसरी पार्टी उसको इन्फॉर्म कर रही है कोर्ट को कि उसके साथ रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, उस रॉन्गफुल एक्ट की जो रेमेडी होगी, उस रेमेडी के लिए जो ऑर्डर होता है उसको बोलते हैं रेमेडियल ऑर्डर। So उस remedial this remedial order is an injunction. So I think it would be clear definition of Lord Halsbury and Joyce. So for clearing the definition, there are so many landmark judgment of Supreme Court and various high courts of India. First is State of Rajasthan versus Randhir Singh. State of Rajasthan versus Randhir Singh, AIR 1972. So this case has been decided by the Rajasthan High Court.
So in this case, the Rajasthan High Court defined injunction in his way. The High Court says that the injunction is such a specific order of the court. Injunction is such a specific order of the court which is issued to prevent such wrongful act. Wrongful act को कोर्ट का एक स्पेसिफिक ऑर्डर किस ऑर्डर का पर्पज क्या है? टू प्रिवेंट सच wrongful act which has been commenced or to do prevent the threatening to commence such act. ठीक है, या तो वो किसी wrongful act को करने से रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ wrongful act, एंड या फिर which has been commenced to or prevent the threatening to commence such act. या तो wrongful act हुआ है, उसको wrongful act को करने से रोकना है, या फिर लग रहा है कि वो थ्रेटन कर रहा है wrongful act के लिए, तो उसके लिए भी. तो दिस इज द injunction is specific order of the court which is issued to prevent such wrongful act which has been commenced or to prevent the threatening to commence such act. So this is the definition of the Rajasthan High Court in the case of State of Rajasthan versus Randhir Singh AIR 1972. So this is the definitions of injunctions. So our next point is in this session is type of injunction. So there are four kind of injunctions which is specifically defined under the in Specific Relief Act 1963. So section 37 define 38 define the define about the 37, 38, 41 for injunctions, and the process for granting such an or granting or to obtain such injunction from the court is given under Order 39 of Civil Procedure Code 1908. So there are four kind of injunction. First is temporary injunction, second is perpetual injunction, third is mandatory injunction, and fourth is negative injunctions to perform negative agreement. Okay. So come to the first point, temporary injunctions. So what is temporary injunctions? What do you know about the temporary injunction? So temporary injunction is defined under section 37 clause 1 of Specific Relief Act 1963. So section 37 clause 1 says that temporary injunction are such as are to continue until a specified time or until the further order of the court, and they may be granted at any stage of the suit and are regulated by the Code of Civil Procedure Code 1908. So there are four major point in this definition of temporary injunction. First is the injunction which are continue for a specified time. The injunction which are continue for a specified time. इंजंक्शन क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, 2 months 3 months व्हाट एवर इट मे बी, ठीक है, तो उस टाइम के लिए वो कंटिन्यू रहता है. ठीक है. सेकंड इज अनटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. कोर्ट के अग्रिम आदेश तक. कोर्ट क्या बोलेगा जब भी इंजंक्शन करेगा कि अग्रिम आदेश तक ये यथास्थिति होनी चाहिए, ये इसके फेवर में इंजंक्शन दिया जा रहा है, ये इनको रेमेडी दी जा रही है, इनको कंपनसेशन व्हाट एवर इट मे बी इन एनी फॉर्म ऑफ द इंजंक्शन. सो फर्स्ट इज द इंजंक्शन फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम, एंड सेकंड इज द इंजंक्शन फॉर द till the further order of the court, and third is it may be issued at any stage of the suit. ये सूट के वे बाद के किसी भी स्टेज पर किसी भी चरण में क्या है, कोर्ट इसको ग्रांट कर सकता है. ये नहीं है कि अब हियरिंग हो गई है या फिर पार्टीज के एविडेंस हो गए या गवाही हो गई है, जो भी है अब नहीं होगा, या फिर जजमेंट आ गया है अब नहीं होगा. So before execution of the decree, before granting the decree by the court, and the injunction may be granted. First is it is for a specified time, and second is till the further order of the court, and third is at any stage of the suit, and the fourth is all these process for temporary injunctions are regulated by the Code of Civil Procedure Code
1908. So as I have already said, the process to obtain the injunction from the court is to be regulated by the Order 39 of the Civil Procedure Code 1908. Okay. So this is about temporary injunctions. So the question is, in which cases we can obtain the temporary injunctions, or the court may grant the temporary injunctions. So this situations or cases have been defined under Order 39, Rule 1 of the Civil Procedure Code 1908. So Order 39, Rule 1 of CPC says that the plaintiff or the aggrieved person may obtain or may apply for the injunctions in the following four cases. First, that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged, or alienated by any party to the suit, or wrongfully sold in execution of a decree. अब जो पहली कंडीशन है, इसमें हम इलस्ट्रेशन ले सकते हैं कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज प्रॉपर्टी. ठीक है, चाहे वो टाइटल के लिए हो, पोजेशन के लिए हो, ऑनरशिप के लिए क्वेश्चन हो. बट इफ यदि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, अब उसमें प्लेंटिफ को लग रहा है या फिर किसी भी जो भी पर्सन अग्रीव्ड है उसको लग रहा है कि जो भी सूट की प्रॉपर्टी है उसको क्या है, जो डिफेंडेंट है, जो दूसरी पार्टी है, उसको क्या है, वेस्ट कर सकता है, उसको खराब कर सकता है. दूसरा, उसको डैमेज कर सकता है. थर्ड, एलिनेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट, जो उस सूट की पार्टी है, जो उस वाद में पक्षकार हैं, उनके द्वारा एलिनेशन किया जा सकता है. अब एलिनेशन क्या होता है? प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करना. ठीक है, हालांकि दिस इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इन टीपीए. सेक्शन 64 सेज दैट कि एलिनेशन आप नहीं कर सकते. सेक्शन 52 53 सेज दैट कि जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी है, लिस पेंडिस, वो क्या है, वॉइड होता है. बट यदि वो एलिनेट करने जा रहा है और रॉन्गफुली सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन हुआ, ठीक है, और एग्जीक्यूशन का मोड क्या था, सेल, तो उसमें क्या है, वो उसको रॉन्गफुली सोल्ड किया गया है. सो इन दिस फोर केसेस, प्रॉपर्टी वेस्टेड है, डैमेज है, एलिनेशन कर सकता है दूसरी पार्टी, या फिर उसको रॉन्गफुली सोल्ड किया गया है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में. तो इस इस पॉइंट के आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर क्या है, जो भी अग्रीड पार्टी है प्लेंटिफ, कोर्ट जा सकता है कि मान्य न्यायालय ये प्रॉपर्टी को खतरा है, सो यू कैन प्रे फॉर द कोर्ट टू ग्रांट एन इंजंक्शन. ठीक है. एंड सेकंड इज द डिफेंडेंट थ्रेटन्स or intend to remove or dispose of his property with a view to defrauding his creditors. सेकंड कंडीशन क्या है कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ को थ्रेटन कर रहा है, उसको डरा रहा है, धमका रहा है, और उसका इंटेंशन क्या है कि जिस प्रॉपर्टी को लेके केस चल रहा है, उस प्रॉपर्टी को वो डिस्पोज ऑफ करना चाहता है. अब डिस्पोज ऑफ के कई मोड है हमारे. डिस्पोज ऑफ वो सेल करके भी कर सकता है, वो सेल नहीं कर रहा है, सेल को रोका हुआ है, तो वो उसको गिफ्ट कर सकता है. ठीक है, वो उसको विल के द्वारा दे सकता है अपने उनको. तो इस केस में क्या है, यदि प्लेंटिफ को लगता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट है, वो खराब हो जाएगा, या फिर क्रेडिटर का जो भी इंटरेस्ट है वो सफर हो जाएगा, तो उस केस में आप क्या है, कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं इंजंक्शन के लिए, टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए. और यदि कोर्ट सेटिस्फाइड होता है तो आपको टेम्परेरी इंजंक्शन मिल जाएगा. थर्ड कंडीशन है कि डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोजेस. अभी तक क्या है, वो उसको डिस्पोज ऑफ करने की थ्रेटन दे रहा था, डिफेंडेंट उसको धमका रहा था. बट यहाँ पर क्या है, थ्रेटन टू डिस्पोजेस, उससे उसको क्या है, उसका कब्जा छीनना चाहता है, उसको उसका जो भी पोजेशन है उसको हटाना चाहता है वहां से. देन द प्लेंटिफ or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit. So in this case, you can go to the court for obtaining any injunctions. So then on the basis of these facts, the court may be
may be order granted temporary injunctions to restrain such act. तो कोर्ट ऑब्जर्व करेगा, कोर्ट तथ्य में जाएगा, इन तीनों में से कोई भी एक मिलता है या तीनों मिलते हैं या दो मिलता है, कोई भी एक ग्राउंड मिल जाता है, तो उस ग्राउंड पे क्या है, उस एक्ट को रोकने के लिए उस पर्सन को, चाहे वो प्रॉपर्टी को बेचने वाला है, उसको डिस्पोज ऑफ करने वाला है, या फिर उसको डिस्पजेस कर रहा है प्लेंटिफ को, या फिर उसको थ्रेटन कर रहा है, सो इस केस में क्या है, उसको रिस्ट्रेन करने के लिए कोर्ट सच पर्सन को के फेवर में इंजंक्शन ग्रांट कर देगा, और मेक सच अदर ऑर्डर फॉर द पर्पज ऑफ स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग डैमेजिंग एलिनेशन। तो एलिनेशन नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा, वेस्टिंग नहीं करेगा, उसको सेल नहीं करेगा, रिमूवल और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी वो उसको नहीं करने देगा। ठीक है, अनटिल द कब कब तक हमने पढ़ा था, जब टेम्परेरी इंजंक्शन के हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तब हम बोल रहे थे कि फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम। अब उसमें टाइम दिया गया होगा 2 मंथ 3 मंथ जो भी दिया हो, ठीक है, या फिर टिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो तब तक वो कर सकता है। ठीक है, टिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, या फिर तो कर सकता है। ठीक है, सो इन दिस केस वी कैन ऑब्टेन द टेम्परेरी इंजंक्शंस फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, सो बैक टू द टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस, फर्स्ट इज टेम्परेरी एंड सेकंड इज परपेचुअल इंजंक्शंस। So what is perpetual injunctions? So perpetual injunction is also defined under section 37 clause 2 of 1963, and so section 37 clause 2 says that a perpetual injunction can only be granted by the decree. ये क्या है, केवल डिक्री से ही, केवल डिक्री से ही कोर्ट की डिक्री होगी, उसी के द्वारा परपेचुअल इंजंक्शन हो सकता है, नॉट लाइक एज टेम्परेरी इंजंक्शंस। ठीक है, the decree made at the hearing and upon the merits of the suit, the defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of a right or from the commission of an act which would be contrary to the rights of plaintiff. So again, there are 3 or 4 major points in the definitions. First is the perpetual injunctions can be only granted by the decree. ठीक है, तो परपेचुअल इंजंक्शन का क्या लेके आए, डिक्री आएगी अलग से। ठीक है, सेकंड, वो डिक्री कैसी होगी, अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट, अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट। एंड थर्ड, इट इज द डिक्री मेड एट द हियरिंग, हियरिंग के दौरान जो डिक्री आई है। एंड फोर्थ, देन द डिफेंडेंट इज देयरबाय परपेचुअली एंजॉइंड फ्रॉम द असर्शन ऑफ ए राइट, तब उसको वो परपेचुअल इंजंक्शन मिलेगा, or from the commission of an act which would be contrary to the rights of the plaintiff. ठीक है, so again, in which cases we can obtain the perpetual injunctions. So perpetual, the grounds to obtain the perpetual injunctions is given under section 38 of Specific Relief Act 1963. So this is to be remembered that the grounds for obtaining the temporary injunctions is given under Order 39, Rule 1 of Civil Procedure Code 1908, whereas the grounds for perpetual injunction is given under Section 38 of the Specific Relief Act 1963. तो हमको क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, टेम्परेरी इंजंक्शन का दिया हुआ है सीपीसी में, सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 1 में, जबकि परपेचुअल का जो परपेचुअल इंजंक्शंस के ग्राउंड है वो हमको कहाँ पे दिए हुए हैं, सेक्शन 38 एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो सेक्शन 38 क्या बोलता है हमारा, कि ए परपेचुअल इंजंक्शंस मे बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एनी ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर वेदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो परपेचुअल इंजंक्शन किसको दिया, किस पर्सन को दिया जा सकता है, प्लेंट की कोई एक ऑर्डर
उसके फेवर में आया है, ठीक है, और उस ऑर्डर का, उस आदेश का क्या है, वो ऑब्लिगेशन नहीं कर रहा है, वहां पर ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन है, चाहे वो एक्सप्रेसली हो या फिर इम्प्लाइडली हो। अब हम जब डेफिनेशन की बात कर रहे थे परपेचुअल इंजंक्शंस की, तो हमने बोला था कि परपेचुअल इंजंक्शन क्या एक डिक्री के द्वारा आएगा। तो डिक्री के द्वारा क्या है, किसी एक पर्सन के फेवर में राइट्स दिए गए हैं। तो डिक्री में क्या होता है कि एक पर्सन के फेवर में जाती है, तो वो केस की हियरिंग हुई, हियरिंग के बाद जजमेंट आया, जजमेंट के बाद डिक्री बनी। तो दो दो पक्ष होते हैं हमारे, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो केस क्या है, केस का जो जजमेंट है वो किसी न किसी के फेवर में जाएगा, ठीक है। अब जिसके फेवर में वो गया है, उसके उस डिक्री का, उसके जो भी राइट्स है उसका वो ऑब्लिगेशन नहीं करता है सामने वाला पार्टी, उसकी ब्रीच करता है। तो उस केस में क्या है, प्लेंटिफ के पास राइट है कि वो कोर्ट जा सकता है और वहां से परपेचुअल इंजंक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है। अब जब बात आ रही है कि उसके फेवर में राइट थे, उसको नहीं कर रहा, तो परपेचुअल इंजंक्शन मिल गया है को, तो उसको क्या है, वो करना होगा। तो प्लेंटिफ क्या, कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट ने यदि परपेचुअल इंजंक्शन दे दिया उसको कर, तो उसको वो फॉलो करना होगा। अब यदि वो परपेचुअल इंजंक्शन का क्या है, डिसओबीडेंस करता है, ठीक है, तो ये हमको और यदि डिसओबीडेंस करता है, तो इसका हमको प्रोसेस दिया हुआ है ऑर्डर 39 रूल 2A में। जो रूल 2A है, ये हमारा अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 104 ऑफ 1976, 1976 में जो भी संशोधन हुआ था सीपीसी में, उसके द्वारा हमारा ऑर्डर 39 में रूल 2A जोड़ा गया है, ठीक है। तो रूल 2A बताता है हमें कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोबीडेंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शंस। यदि वो उसका फॉलो नहीं करता है, तो क्या होगा उसको, देन कोर्ट में द कोर्ट में अटैच द प्रॉपर्टी एंड आल्सो order for the detention to such person in civil prison not for 3 months। उसको क्या है, 3 महीने का क्या है, सिविल प्रिजनमेंट हो सकता है, यदि कोर्ट ने इंजंक्शन दिया प्लेंटिफ के फेवर में, डिफेंडेंट ने उसको नहीं माना, उसको फॉलो नहीं किया, उसको ब्रीच कर दिया, तो कोर्ट उस जिसने फॉलो नहीं किया है, जो भी उसका डिफॉल्टर है, उसको 3 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा, सिविल इम्प्रिजनमेंट। अबे सिविल इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, सिविल इम्प्रिजनमेंट से मतलब है कि आपने देखा होगा जैसे लोन वाले डिफॉल्टर होते हैं या फिर सेल वाले डिफॉल्टर होते हैं, तो इनको क्या है, तहसील पे कारागार होती है, एक तहसील पे एक लॉकअप होता है, उस लॉकअप में उनको बंद करके रखा जाता है, ठीक है। ताकि जैसे और जनरल कैदी होते हैं जैसे जेल में होते हैं, वो सिविल प्रिजन नहीं होती। सिविल प्रिजन क्या, तहसील पे एक लॉकअप होता है, उसमें रखा जाएगा, ठीक है। तो उसको 3 महीने तक मैक्सिमम उसको वहां पे रख सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पहला ग्राउंड है जिसमें हम परपेचुअल इंजंक्शन ले सकते हैं। यदि प्लेंटिफ के फेवर में कोई राइट है उसके, तो उसको जो भी ऑब्लिगेशन है उसको कोई ब्रीच करता है, तो प्लेंटिफ क्या है, कोर्ट जाके उसका इश्यू करा सकता है। सेकंड है, व्हेन एनी सच ऑब्लिगेशन अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों पार्टीज के बीच में, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट था। क्या कॉन्ट्रैक्ट था, कि द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द रूल्स एंड प्रोविजन कंटेंट इन चैप्टर सेकंड, ठीक है। Third, when the defendant invades or threaten to invade the plaintiff's right to or enjoyment of property। डिफेंडेंट के प्लेंटिफ को डरा रहा है, धमका रहा है, मैं तुझे प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, जो भी तेरा राइट है, वो उसको प्रॉपर्टी यूज नहीं करने दे रहा है। सपोज कृषि भूमि है, वो उसको खेती नहीं करने दे रहा है, ठीक है। अब केस चला कोर्ट में, अब केस प्लेंटिफ के फेवर में आ गया, तो प्लेंटिफ को प्रॉपर्टी दे दी, उसको पजेशन दे दिया। पहले तो पजेशन का आता है, पजेशन नहीं देता तो फिर उसको कोर्ट सजा देता है, ठीक है। अब पजेशन भी मिल गया उसको, अब वो उसको क्या है, खेती नहीं करने दे रहा उसको उस जमीन पे, ठीक है। सपोज फ्लैट है, उसको अपने हिसाब से काम नहीं करने दे रहा है, ठीक है, उसको प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट नहीं करने दे रहा है। सो देन प्लेंटिफ के पास राइट है कि देन ही कैन मूव टू द कोर्ट एंड द कोर्ट में ग्रांट ए परपेचुअल इंजंक्शंस, ठीक है। तो कोर्ट उसको परपेचुअल इंजंक्शन दे देगा। अब वो किसके किन किन केसेस में देगा, कौन कौन से केसेस हैं। फर्स्ट, वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ।
डिफेंडेंट क्या है, उसी प्लेंटिफ का ट्रस्टी था, उस प्रॉपर्टी में उसी प्लेंटिफ का वो क्या है, ट्रस्टी था। एंड सेकंड, वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असरटेनिंग द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड और लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द इन्वेजन। दूसरा क्या केस है कि उस प्लेंटिफ के फेवर में जो भी उसको डैमेजेस मिले थे, जो भी कंपनसेशन कोर्ट ने दिया था, वो इतना नहीं है कि वो जिससे कि उसकी भरपाई हो सके या फिर उसको असरटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी ऐसा मेजर नहीं है कि यदि जो सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रॉपर्टी है, सपोज प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर केस था, ठीक है, अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी थी, तो वो प्रॉपर्टी वेस्टेड हो गई, डैमेज हो गया, उसका एलिनेशन हो गया, तो अब तो क्या है, उसकी वैल्यू का हम असरटेनमेंट नहीं कर सकते। तो इन केसेस में क्या है, द प्लेंटिफ कैन मूव टू द कोर्ट फॉर ऑब्टेन द परपेचुअल इंजंक्शंस एंड द कोर्ट on its satisfaction may grant the perpetual injunctions to the plaintiff. Third, where the invasion is such that then the compensation in money would not afford adequate relief, वो adequate relief नहीं दे पा रहा है। बोलते हैं जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा, उसको दे दिया है ऊँट के मुंह में जीरा, तो उससे क्या है, उसकी भरपाई नहीं हो रही है। एंड फोर्थ, वेयर द इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट ए मल्टीपलिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, कि इंजंक्शन का इश्यू होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि इंजंक्शन नहीं दिया, कोर्ट को लगता है कि हमने यहाँ पे इंजंक्शन नहीं दिया, या फिर हम कोर्ट को ये बताते कि आपने यदि इंजंक्शन नहीं दिया तो मैं दूसरा केस ले आऊंगा। ठीक है, तो मल्टीपल सेट या प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए क्या है, कोर्ट को आप प्रे कर सकते हैं कि हमको इंजंक्शन दिया जाए। और कोर्ट को यदि लगता है कि यदि हमने यहाँ इंजेक्शन नहीं दिया तो फिर दोबारा से हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा, तो हमको क्या है, मल्टीपलिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रोकना है, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। ठीक है, सो दीज आर द केसेस इन विच वी कैन ऑब्टेन द इंजंक्शंस फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, सो अगेन द थर्ड टॉपिक इज the third kind of the injunction is mandatory injunctions. So what is mandatory injunctions? So mandatory injunction is an injunction whereby an order is issued to any party to do a particular act in a particular way. So the injunction is an order by the court. कोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया है कि यू हैव टू डू सच एक्ट, यू हैव टू डू सच एक्ट, this is mandatory for you in and in a particular way. The way is also defined, the mode is also defined in mandatory injunctions कि आपको ऐसे ही करना है और इस काम को करना है। ठीक है, आपको अपनी दिमाग नहीं लगाना है, आपको अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। ठीक है, जैसा कि क्या है, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है मैंडेटरी इंजंक्शन। सो इट इज सच ए टाइप ऑफ इंजंक्शन वेयर बाय एन ऑर्डर इज इश्यूड टू एनी पार्टी to do a particular act in a particular way. So this is mandatory injunctions. Now fourth is injunctions to perform negative agreement. अब किसी के सर पे आपने जबरदस्ती डाल दिया कोई काम, ठीक है, तो सेक्शन 42 of SRA specific relief act says that कि where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain act, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्टीज के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कि उसमें एक अफर्मेटिव एग्रीमेंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको कोई एक सर्टेन एक्ट करना है। और दूसरा, कपल्ड विद ए नेगेटिव एग्रीमेंट। ठीक है, और नेगेटिव एग्रीमेंट किसके लिए, नॉट टू डू ए सर्टेन एक्ट, कि आपको ये काम, एक सर्टेन एक्ट है वो आपको काम नहीं करना है, तो ये दोनों चीजें हैं उसमें। ठीक है, वेदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। देन द सर्कमस्टांसेस से दैट the court is unable to compel specific performance of the affirmative agreement which shall not preclude it from granting an injunction to perform the negative agreement. ठीक है, so this is the fourth kind of injunctions. Again I repeat, first is temporary injunctions. ठीक है, temporary injunction is issued for a specified time or till the further order of the court, and it may be issued at any stage of the suit, and the process for granting the
or to obtaining the injunction is regulated by the Order 39 of the Civil Procedure Code 1908. And second is perpetual injunctions. So perpetual injunction is defined under section 37 clause 2 of Specific Relief Act 1963. So it is issued by in the form of decree. Okay, and the process to obtain the perpetual injunction from the court is given under section 38 of the Specific Relief Act. Okay. Third is mandatory injunctions, and fourth is injunctions to perform negative agreement. ठीक है, इसमें भी एक केस आता है कि बर्न एंड कंपनी वर्सेस मैकडोनल्ड. ठीक है, सो नेगेटिव एग्रीमेंट कैन आल्सो बी इन फॉर्म ऑफ इम्प्लाइड एग्रीमेंट. ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट. ठीक है, अब नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड और on the basis of which principle the court can grant the injunctions. So there are three main principles. First is prima facie cases, and second is principle of irreparable loss, and third is balance of convenience. ठीक है, so the first is prima facie case. So during the proceeding, during the hearing of an application or suit, the court seems that this is the bona fide case and there is possibility of success in favor of the plaintiff. So on the basis of prima facie or on the observation of prima facie, the court can grant the injunctions to the plaintiff or the party who applied for it. ठीक है, so there is another landmark judgment of Rajasthan High Court in Vimla Devi versus Jang Bahadur AIR 1977. So in this case, the High Court of Rajasthan has decided that for temporary injunction, there should be a prima facie case. It means the possibility of getting remedy by the plaintiff. Okay. So this is the first principle. Next is principle of irreparable loss. Irreparable means क्या होता है? It is not possible to evaluate such loss in money. जिसकी हम भरपाई ही नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब during the hearing, during the proceeding, court seems like that if the injunction is not granted in the favor of the plaintiff, then there is possibility of irreparable loss of the plaintiff. Plaintiff को बहुत सारा नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती. So on this ground, the court may grant injunctions to the plaintiff. And third is balance of convenience. कन्वीनियंस बहुत फेमस है. ठीक है, अब ये प्रूव करना कि कन्वीनियंस किसको है किसको नहीं है. ठीक है, ये बड़ी महारत होती है इसमें. ठीक है, ये हमारे लिटिगेशन के जो महारती हैं वो करते हैं. ठीक है, सो कन्वीनियंस में द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ issuing injunction is balance of inconvenience. It means if the injunction is not issued, then there will be more inconvenience to the plaintiff relative to the defendant. And the court has taken into account the balance of inconvenience. कोर्ट देखेगा कि प्लेंटिफ को सहूलियत है या फिर डिफेंडेंट को सहूलियत है, उनकी सहूलियत के हिसाब से वो ऑर्डर करेगा. ठीक है, and if the balance of convenience is not in the favor of the plaintiff, then injunction cannot be issued in his favor. अब उसके मामले में कन्वीनियंस आ ही नहीं रहा है, केस के फैक्ट से लग ही नहीं रहा है कि उसको इश्यू करना चाहिए. ठीक है, कोर्ट कन्वीनियंट ही नहीं हो पाया तो उसको इंजंक्शन नहीं देगा, उसमें क्या है वो मना कर देगा. ठीक है, so on the basis of these three principles, the court can issue the court can grant the injunctions. If there is no principle applicable in any case, so there is an landmark judgment कुसुम गुप्ता वर्सेस सरला देवी AIR 1988. ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहता है कि इफ एनी ऑफ थ्री प्रिंसिपल इज नॉट कंप्लाइड विद, यदि इन तीनों प्रिंसिपल्स की कंडीशंस पूरी नहीं हो रही हैं, देन द इंजंक्शन शुड नॉट बी इशूड. इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इंजंक्शन इज नॉट योर राइट, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंजंक्शंस. तो आई थिंक
it would be very helpful for you for any for your semester exam, for a university exam, or for any competitive exam. So I think it would be very clear. So thank you so much. We will continue in next session